हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिमेनिंग सम 7.2 के जो सेक्शन फॉर्मूला के रिलेटेड है वो कर रहे हैं। कल हमने दो सम किया था, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। टुडे ऑल्सो बेस्ड ऑन सेम फॉर्मूला we try to solve those sums. First of all, look at question number 5. What is given there? Find the ratio in which the line segment joining 1, -5, -4, 5 is divided by the x-axis. Just like number 4. In number 4 also ratio was asked here also. But in number 4, third point was given. Means P was given. In between point. Here not given. But x-axis means you know y coordinate is 0. And I also told you for finding ratio means one missing variable. One thing is missing. One part is enough. So if you know in between P points one coordinate, then it is enough to find ratio. So no problem, we will find. And also find the coordinates of the point of division. So you have to find coordinates of point also. Okay. So first of all, try to draw that figure we usually draw. Here is m is to n. This is xy. Okay. This is our usual notation. Every time when it is related to section formula, we write that way. Okay. Now these endpoints are given. They are 1, -5, -4, 5. This is not given, and here x, 0. But because on x-axis y is 0, that we know. Okay, so this is the formula. Now, write down that section formula x equal to mx2 plus mx1 m plus n, and here also y equal to my2 plus my1 m plus n. Okay, now write down or place all values given here. If you try to go ahead here, आप यहाँ आगे बढ़ने की ट्राई करो तो यहाँ प्रॉब्लम होगा, x भी नहीं है और m भी नहीं है, तो आपको यहाँ ही आगे बढ़ना पड़ेगा कोई एक साइड, और एक साइड में हम यही सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि y दिया गया है इनडायरेक्टली। तो समझ गए, ऐसे केस में अगर यहाँ x या y एक्सिस का पॉइंट होगा तो ही पॉसिबल है रेशियो पॉइंट दोनों फाइंड करना, वरना पॉसिबल है नहीं। Okay, so write down here y0 m y2 plus m y1 m plus n. y2 equal to 5, y1 minus 5. Okay, now just shift it here. So m plus n into 0, 0. 5m minus 5n. Shift it here, so 5n equal to 5n. We want m by n. Okay, m is to n is m by one thing, it is one ratio. So obviously it is m by n. n comes here. 5 तो यहाँ था ही, वो 5 यहाँ है. So 1 by 1 equal to n by n. So m is to n, we got 1 is to 1. Okay, so one answer we got that. और यहाँ मेन ये समझना है कि ये लोगों ने x एक्सिस का पॉइंट दिया है तो हमें x, 0 ही लिखना है, x, y नहीं, क्योंकि y हमें पता है 0. ओके, मतलब आधा पॉइंट ही मिसिंग है, आधा पॉइंट तो पहले से पता है. ओके, नाउ यूज दिस वन हियर. ओके, तो आपको यहाँ आगे कर सकते हो mx2 plus mx1 m plus n. तो 1 1 है, तो 1 1 1 1. x2 है -4 और x1 है 1.
ओके, अभी कुछ नया नहीं है। 1 4 जा 4 प्लस माइनस माइनस 1 जा 1 upon 2, so it is minus 3 by 2. So we got ratio also, point also. Okay, so now you can give your final answer including both answers. Okay, so can I write here point is, या तो x axis, this is the point of x, तो x axis divides line segment AB ये लोगों का है, तो हम भी AB लिख सकते हैं। AB in the ratio m is to 1:1 at point -3 by 2, 0। तो मैंने एक स्टेटमेंट में दोनों आंसर दे दिए। ओके, so x axis divides AB in the ratio 1:1 and 8 point -3 by 2, 0। Okay, again I explain it. First of all, understand question. They are asking that 2 points are given, and if you join them, then resulting line segment is divided by x axis. वो x axis को कहीं पर कट करेगा, क्रॉस करेगा। तो कहाँ कर रहा है वो, कौन से रेशियो का? तो मतलब पॉइंट पे नहीं है, रेशियो पे नहीं, लेकिन पॉइंट नहीं है मतलब पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट नहीं है, एक तो है क्योंकि x एक्सिस पर y से होता है, और इसका यूज करके हमने पहले फाइंड किया, रेशियो फाइंड किया, कल किया था नंबर 4 में ऐसे भी, और इसका यूज यहाँ किया। ओके, तो आप यहाँ इसको नंबर देके भी लिख सकते हैं, यूजिंग 1 रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि ये पार्ट हमने बाद में किया एक्चुअली, वहां से यहाँ। ठीक, तो क्लियर हो गया कि आपने पहले एक पार्ट किया, बाद में किया, वरना एग्जामिनर को कैसे पता कि आपने कहां से कहां गए। Okay, so this is the case to find ratio as well as that dividing point. Okay, now example 7 is just like that. Example 7 is just like that, and that is important. Okay, वहां भी देखो, example 7 भी देखो। So 9, example 9. Find the ratio in which the y-axis divide the line segment showing in 2 points. Also find the point of intersection. तो वहां 0 y होगा, पहले इस साइड में से रेशियो मिलेगा, यहाँ से पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल ऐसा, लेकिन थोड़ा और। ओके, और वैल्यू बदलेगी। ओके, सो जस्ट लाइक दैट यू हाउ टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 9। वहां से कॉपी करके मुझे नहीं चाहिए। ओके, ब्लाइंड कॉपी करके नहीं, ओनली क्वेश्चन ही वहां से देखो और आंसर टैली करो, बाकी सॉल्यूशन हमारे हिसाब से। ओके, शॉर्टकट मत लो। अभी एक बात क्लियर, अभी नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये तो हमारा इक्वेशन यही है, सॉरी ये भी है, लेकिन मैंने रख दिया। कोई 2 पॉइंट दिया है, ट्राइसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। पहले तो व्हाट इज मीन बाय ट्राइसेक्ट? ट्राइसेक्ट जस्ट लाइक बाइसेक्ट, सेक्ट मींस डिवाइड, by means 2, tri means 3. So to divide in 3 equal parts, that means trisect. To divide in 3 equal parts, that is mean trisect. Okay, तो आपको ट्राइसेक्ट करना मतलब इन बिटवीन 2 पॉइंट रखना पड़ेगा। मैं बोलूँ ये मार्कर को 3 इक्वल पार्ट्स में कटिंग करना है, तो बीच में 2 जगह कटिंग करना पड़ेगा। ओके, और पर्टिकुलर पॉइंट पर ही, तो मतलब आपको ऐसे लिखा हुआ है, तो बीच में 2 पॉइंट आएगा, एक नहीं, एक तो P कहीं पर मान लो यहाँ आया, तो Q भी यहाँ पर आएगा, और तीनों पार्ट इक्वल बनेंगे, ये और ये। ओके, और मेन यहाँ x है, तो हमारे फिगर ऐसे ही बन गया। अभी Q को भूल जाओ,
एट ए टाइम कोई एक पॉइंट फाइंड करेगा तो m/n भी हम ऐसे लिखते हैं, मतलब एवरी टाइम लिखते हैं ऐसे, पॉइंट एक नया आता है। देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं, लेकिन पहले वो लिखते दोनों पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3 ये हमें फाइंड करना है। लेकिन रेशियो तो लेकिन देखो वन पार्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, टू पार्ट्स टुवर्ड राइट, क्योंकि अभी क्यू को बोल जाते तो p के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और राइट साइड में टू पार्ट्स है, तो रेशियो कौन सा हुआ 1:2। 1:2 का मतलब क्या, एक से दूसरा डबल है। ओके, सो वी कैन हियर अंडरस्टैंड इट इज 1:2। ये एक्चुअली दिया गया है लेकिन इनडायरेक्टली, अंडरस्टूड। ओके, बस अभी कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं, आप जैसे करते ऐसे करो। तो मैं थोड़ा फास्ट समझना क्या था, ये पहले तो ट्राइसेक्ट का मीनिंग 3 इक्वल पार्ट्स, दो इन बिटवीन पॉइंट होना चाहिए। पहला पॉइंट को हम फाइंड करें तो 1:2 रेशियो आएगा, इसलिए कि एक पार्ट से दूसरा पार्ट डबल, इसलिए। ओके, बस अभी वो फॉर्मेलिटी बाकी रही, mx2 प्लस mx1 m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस my1 m प्लस n। Write down everything, mx2 plus mx1 m plus n, 1 2 1 2, x2 minus 2 x1 2. Okay, so it is -2 plus 6 upon 3, 4 upon 3. Okay, again 4 minus 1 minus 2 minus 3, 1:2 1 2 1 2 minus 2 और यहां रखा 4, 4 2 6, so it is 6, so it is 2। ऐसे ही y इक्वल टू my2 प्लस ny1 m प्लस n, 1 2 1 2, y2 minus 3 y1 minus 1 minus 3 minus 1, so it is -3 minus 2 upon 3, plus minus minus, there also plus minus minus, -3 minus 2 -5, ये तो पता है ना, +5 नहीं, माइनस माइनस प्लस का मतलब यहाँ साइन प्लस में एडिशन। ओके, तो पॉइंट मिला, देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट इज 2, -5/3। ओके, सो अगेन 2 पॉइंट्स होना चाहिए, 3 पार्ट इक्वल का मतलब है ट्राइसेक्ट, इसलिए पहला रेशियो 1:2 मिला। बस बात में कुछ नया नहीं था, ओनली इतना ही समझना था। ओके, अभी क्यों भी ऐसे मिलेगा, क्यों में क्या फर्क पड़ेगा पता है, 1:2 की जगह 2:1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पार्ट्स ये साइड और 1 पार्ट ये साइड, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, हमारा सीक्वेंस एवरी टाइम यही होता है, नंबर भी ऐसे देखो 1 1 2 2। ओके, तो क्यों आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्यों ट्रबल दे, हम यहां है ना। ओके, तो आपको कुछ ट्रबल देना नहीं है, आप ओनली आराम से बैठ के वीडियो देखो और स्क्रीनशॉट लिया करो और बाद में लिखो, माइंड को ट्रबल देना नहीं है। यहां हम कुछ नया सपोज करें, x प्राइम y प्राइम, और यहां भी नया है m प्राइम n, और वो है 2:1, तो बिल्कुल वही बात रिपीट होगी। देखो, लेकिन बात ऐसे है, ये भी कंपल्सरी नहीं है, ऊपर आप हेडिंग देते तो भी सेम सिंबल रख सकते हैं। तो मैंने दूसरी बार स्टार्ट कर दी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ले लो, मैंने टेस्ट कर दिया हुआ था। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए बात थी, अभी सेकंड के लिए स्टार्ट हो गई, ओनली चेंजेस इज हियर, ये नहीं बदल गई, ये नहीं रखो तो भी नो प्रॉब्लम, ये 1+2 रखो या 2+1 रखो, क्या फर्क पड़ेगा। ये बदल गया, यहां 1 था, इसकी जगह 2, यहां भी 2, यहां तो 2+1 करो या 1+2,
-4 +4 डिवाइड बाय 3, 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस 1 4 जा 4, 0/3 0, 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस अगेन 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस -7/3, बात खत्म। 0, -7/, ओके। तो ये दूसरा पॉइंट में मिल गया, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का आंसर तो मेरा हो गया ना, ये आधा संभव। फिगर एक की ना, फिगर दोबारा मत करो, दोनों एक साथ बना दो, समझ गए? तो बात क्वेश्चन समझने की नहीं थी, कैलकुलेशन वो ये सारी बात रिपीट की, पहले से लास्ट तक सेक्शन पकड़ लो। एक बार आपकी फिगर कंप्लीट होगी तो मान लो ने आपका हाफ से ज्यादा सम कर, ओके। लेकिन मैंने ट्रबल सम में नहीं दिया, और थोड़ा ट्रबल आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 8 देखो, एग्जांपल नंबर 8 ऐसा है ट्राइसेक्शन वाला, ओके। तो 8 भी वहां पर है, लेकिन वहां भी एग्जांपल है, सॉल्यूशन भी है, लेकिन सॉल्यूशन कॉपी नहीं करना है, ओके। अपने हिसाब से देखना है, अपने हिसाब से करना है। और एक बात, अगर कोई को थोड़ी थिंकिंग करने की मान लो कि खराब आदत है, ओके, मोस्ट ऑफ पर्सन को तो नहीं है, लेकिन मान लो किसी को ऐसी आदत है, तो वो लोग शायद ऐसे सोचते होंगे कि सर ये आपने क्यू ऐसे फाइंड किया ना, इसकी जगह एक शॉर्टकट था, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पीपी, ए को हो जाए, पी को फाइंड कर दिया आपने, पहले किया था ना, ओके। 2, -5, इसको याद रख दो, तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पीपी, तो कल मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया कि नहीं, इसके हिसाब से भी हो सकेगा। यहां वो आंसर रख दो, तो x + x2 डिवाइड बाय 2, y + y2 मतलब x का एवरेज और y का एवरेज, तो भी मिलेगा, ओके। नो प्रॉब्लम, यू कैन, आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं। दोनों मेरी तरह सेक्शन फॉर्मूला से करना है तो भी करो, एक को सेक्शन फॉर्मूला से करके बाद में और दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी हो सकता है, अगर आपको करना है तो, ओके। तो इसके जैसा ही नंबर 8 है, जो बिल्कुल एक सम है, ऐसा ही एग्जांपल है, मैंने देखिए कैसे करना हो, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप समझोगे तो, वरना कॉपी करने वाले हैं। अभी नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। वहां भी देखो क्लियरली दिया गया, ए बी है, बीच में पी है सब। तो फिर से वही फिगर एक रिपीट ही होगी सिंबल के साथ, ए बी पी, x1 y1, x2 y2, xy, m/n, mn, ओके। लिख दो क्या क्या दिया है, पहले -2 -2, बाद में 2 -4, ये पॉइंट नहीं है, और यहाँ रेशियो भी नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ दिया है। पहले देखो हमारा m/n का मतलब क्या है, m/n का मतलब m/n मतलब AP/PB, ये नहीं है पहले, ये होगा तो मिलेगा, जब तक रेशियो नहीं है तब तक पूरा पॉइंट कैसे मिलेगा, आधा पॉइंट होता तो मिलता, आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, लेकिन पूरा पॉइंट नहीं है। तो हमारे यहाँ का एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऐसा लिखा है, तो यू शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल n²। इसके लिए तो कुछ रिलेशन दिया है, AP = 3/7 AB। मैं AB को यहाँ लिखूं तो AP/AB = 3/7, लेकिन ये नहीं, AP/AB है, मैं क्या चाहिए, AP/PB, ये साइड इनटू ये साइड, इस टू ये साइड, ऑब्वियस है। देखो पूरा 7 पार्ट है, 7 है मतलब 7 पार्ट है टोटल, इसमें से 3 पार्ट यहाँ है, ऑब्वियसली 4 पार्ट यहाँ ही होगा, ओके। तो आप सीधा लिख सकते हो AP/PB = 3/4,
ओके, तो ये थोड़ी बात नहीं थी। देखो m बाय n का मतलब a is to a, मतलब ये अपॉन है, लेकिन नहीं है तो हमने यहां से लाया है a p upon n given, so a p upon b is what, out of total subtract this part, so you will get that part 4, so directly you return बस। तो यहां मैं 3:4 अभी लिख सकता हूं, पहले से मैं अभी लिखा, अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, थोड़ा ट्रबल आप ही ले लें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज होमवर्क, 2 एग्जांपल है, एक क्वेश्चन, लेकिन स्टार्टिंग मैंने करवा दी। अभी आपको ओनली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करनी है, सब कुछ है x1 y1 x2 y2 mn, ओनली फर्स्ट सम की तरह x y फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है, डिवाइस ए पॉइंट। ओके, नाउ लुक एट नंबर 10। एक्चुअली 10 के साथ है ना वो सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड नहीं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड है, मतलब वो अगली एक्सरसाइज में होना चाहिए था। 7.1 में गलती से यहां आके बैठ गया। ओके, कोई बात नहीं, यहां बैठने दो इसको। आपको पता है रोम्बस के एरिया की फॉर्मूला, फिर भी ये लोगों ने दी, क्योंकि इसको ये भी पता है कि सबको पता होता नहीं, इसलिए देखो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, तो रोम्बस की बात है, अगर हम रोम्बस ड्रॉ करने की ट्राई करें, रफ फिगर है, कोई मेजर करके नहीं, हमारे लिए एग्जामिनर के लिए नहीं, मान के लिए ए बी सी, हम सीक्वेंस में कहीं पर से लिखो, तो पहले मैं ए से स्टार्ट करूं, तो 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। लेकिन ये तो सारे पॉइंट है, हमें क्या चाहिए पता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, राइट, तो ये डायगोनल चाहिए, दूसरा ये, तो डायगोनल मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो एक्सरसाइज 7.1 में हमने किया था ना, ये बिल्कुल करना है, x का डिफरेंस, y का डिफरेंस। ओके, ऐसे आगे बढ़ना है। सो a² = 3 माइनस प्लस 1² माइनस था, लेकिन माइनस प्लस फॉर्मूला में माइनस ही, बिगर पहले लेता हूं, स्मॉलर बाद में लेता हूं, ये मेरी हैबिट है, आपकी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सही है। 4 - 0² मतलब 4² + 4², मतलब 16 + 16 32, लेकिन 16 2 है तो हम स्क्वायर रूट निकालना है, सो 4 × 2 बनेगा, 16 2 16 का निकल गया, 2 का नहीं। ऐसे ही बीडी स्क्वायर, क्यों हम डायगोनल फाइंड करने समझ में आया ना, क्योंकि फॉर्मूला में डायगोनल ही आने वाला है, हाफ इनटू AC इनटू BD, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को बिगर बोलते हैं, सो 4 - -2 + 2, 5 - +1, so 6² + 6², 36 + 36 72, लेकिन 36 2 है तो बेटी हम आसानी से बोल सकते हैं 6√2, 36 2 36 का 6 2 का नहीं, बस बात खत्म। एरिया ऑफ ABC इसने दिया है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हमने नेम दिया है ABC, तो हम लिखेंगे C इनटू एरिया, कोई भी नेम दे सकते। सो हाफ AC कितना है 4√2, BD कितना है 6√2। ओके, अभी ये √2 होता है, डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल, √2 × √2 2 के साथ कैंसिल हुआ, 6 4 24² यूनिट आंसर। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कहीं पर आज के कॉन्सेप्ट का कोई यूज नहीं था,
फिर भी यहाँ दिया है तो हमने कर दिया। बाकी जितने भी सम रहे अपने लिस्ट देखो आपको कल जो करने वाले हैं। नंबर 3 है तो लंबा सा है लेकिन बहुत सिंपल है। 4 5 हो गया, 6 7 9। ओके, बाकी सारे हो गए। फर्स्ट हो गया था 2 आज हमने किया, फिर यहाँ है 4 5 कर लिया आज 6 7 8 आज किया है, 9 यहाँ है 10। तो ये सारे जो है सम वो रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम, तो वो हम एक साथ कवर करेंगे। एज मिड पॉइंट थ्योरम और सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज नहीं किया, पर मैंने लिखा ही x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 वो कल करेंगे। तो आज हमने 3 या 4 जो सम किए वो 3 सम होमवर्क में है, एग्जाम्पल 89 एंड क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में से कॉपी नहीं करना है, और क्वेश्चन डाइजेस्ट में से या तो गाइड में से कॉपी अपने हिसाब से आप करोगे। तो एग्जाम्पल 9 जैसा आपने पहले 5 सम किया था, तो पहले 5 सम को ठीक से देखो, समझो, खुद करने की ट्राई करो। बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 ऐसे ही करने की ट्राई करो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं। ऐसे बाद में हमने सेकंड सम किया, बिल्कुल ऐसा ही सम 8 है, तो वो पहले समझो ठीक से, और ऐसे ही ये करने की ट्राई करो, टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं। और ये तो मैंने स्टार्टिंग करवा दिया था, ओनली सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू रखनी बाकी थी, फिगर भी दे दी थी, एक रेशियो बाकी था, इनडायरेक्टली दिया गया था, हमने ठीक से डायरेक्ट कर दिया था। ओके, इससे जैसा कोई समझ ही नहीं होगा बस। तो 3 सम होमवर्क में 3 4 सम हमने आज किया है, 4 सम बाद में करने वाले हैं। तो कल ये लेसन भी खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो हम परसों करेंगे। समझ गए? तो बस ये थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात। आई होप यू अंडरस्टूड टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स आर देयर, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। मेन 2 सेक्शन फार्मूला के अंदर ही मिड पॉइंट फार्मूला आती है, तो 2 ही मेन कॉन्सेप्ट। तीसरा एरिया कॉन्सेप्ट है वो रिमूव कर दिया है, एक्सक्लूड, कैंसल, 7.3 पूरी कैंसिल की गई। फिर भी अगर कल टाइम रहेगा तो मैं थोड़ा इसके बारे में समझा दूंगा, या तो एक सम कर दूंगा स्पेसिफिक। आपको करना है तो कर सकते हो, बाकी के सम नहीं करना है तो भी कोई कंपलसरी है